ढा नूं की कहंदे पंजाबी च की लिखिਆ ਭਰਮ 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 ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣਾ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਢਾ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ ਜੀ ਬਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੇ 12 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜੇ ਵੀ ਆ ਲੈ ਫੜ ਪਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ परमेश्वर की वाणी सानू सिखाती है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डा हो नहीं वो तो सानू प्रेम करना सिखाता बैर विरोध करना परमेश्वर का आत्मा नहीं सिखाता जे कोई परमेश्वर का कहला के भी बैर विरोध करता है आपस के विच एक दूसरे निंदिया करता एक दूसरी चुगलिया करता एक दूसरे नू गिराण की कोशिश करता कि वो प्रभु का है तो बाणी कहती है इस तरह के बंदे तो दूर हो जाओ ये भी सिखाती है जे कोई प्रभु का कहला के शैतानी गुण रखदा तो उस दे कोलों दूर हो जाओ बैर विरोध करने के लिए नहीं बल्कि वो शर्मिंदा होवे वो सोचे कुछ भी फलाना बंदा मेरे तो दूर हो गया तो वह तौबा करे एक बार फिर तो परमेश्वर दे विच चलना शुरू कर दे इसलिए हालेलुया वह तो और भी अनुग्रह देता है इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है परमेश्वर दीन बनना जे असी चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर की किरपा बनी रहे साडे जीवन दे विच साडे घर दे विच साडे परिवार विच परमेश्वर की किरपा बनी रहे साडे कम्मां कारां उत्ते परमेश्वर की किरपा बनी रहे तो की करना पएगा दीन होना पएगा दीना दे उत्ते वह तो और भी अनुग्रह देता है इस कारण लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है जो कौन ने अभिमानी ने अभिमानी अक्कड़ रखनी घमंड रखना हंकार अपने आप को कुछ ना होंदे हुए भी समझना है ना होंदे हुए भी कुछ समझना इस तरह के अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है परमेश्वर का वचन विरोध करता और परमेश्वर के लोग भी विरोध करते हैं जे साडे अंदर परमेश्वर का गुण पाया जाता तो असी भी उन्होंने लोगों का विरोध करते हैं बाणी च अगे लिखा इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ परमेश्वर के अधीन होना और शैतान का सामना करो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा कई बार
ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, हैं लहू लहू यीशु का लहू, ये गाने हैं। और क्या गाने हैं, शैतान का सामना करो भागेगा वो तो पहले से हारा हुआ। ये गाने ना गीत आप, शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करने तो पहला की करना है, की लिखिया, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। पहला परमेश्वर के अधीन होना, फिर शैतान का सामना करना। एक जगह लिखिया है प्रेरितों के काम दे लिखिया, शिकवा नाम का एक बंदा सी, उसने जो देखिया परमेश्वर के लोग, पतरस, पौलुस होर प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों से दुष्ट आत्मा निकल जांदियां ने, तो उन्होंने देखिया यीशु मसीह के नां ते दुष्ट आत्मा निकलती है, चलो असीं भी करते हैं। परमेश्वर के अधीन नहीं होए, परमेश्वर के अधीन नहीं होए और दुष्ट आत्मा वाले इंसान के अगे जाके खड़ गए। की किया फिर उसने, पढ़िया ना वचन, हाँ। वो दुष्ट आत्मा कहती मैं पौलुस नूं जानदी हां, मैं पतरस नूं जानदी हां, तुसीं कौन हो, तुसीं कौन हो। तो उन्होंने कपड़े पाड़ दिते। उन्होंने दुष्ट आत्मा ने कपड़े पाड़ते और नंगे होके 7 पुत्र सीगे, 7 के 7 अपने घरों बाहर भज गए, पागल हो गए। पहली शर्त परमेश्वर के अधीन होना। फिर असी दूसरे लिए प्रार्थना करिए, शैतान का सामना करिए। कई बार मैनू फोन आते हैं, असी गए सी फलानी जगह प्रार्थना करके आए, उस तो बाद तो मैं गिर गई मंजे ते, है ना, इदा ही होता ना कि नहीं, सिर दर्द हो गया, है ना। पहला अपने आप लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन होके शैतान का सामना करो, फिर शैतान दौड़ जाता। क्यों, क्योंकि वो तो पहले से ही हारा हुआ है। आप गीत गाने ना, शैतान का सामना करो, है आंदा सबनू ना, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। जिहड़ा हारिया होया वो तो फिर की डरना, हारिया जिहड़ा पहला ही हारिया होया उस तो डरन की लोड़ नहीं। लेकिन हारिया होया भी कई बार हावी हो जाता, हारिया होया भी कई बार हावी हो जाता। जदों असी परमेश्वर के अधीन नहीं हुंदे, असी अपनी धार्मिकता लेके चलते हैं भी मैं तो बहुत वर्त रखदा, मैं तो बड़े दान देना, मैं तो प्रार्थना करदा, परमेश्वर तो अगे निकल जाते हैं, यीशु मसीह तो अगे निकल जाते हैं बहुत सारे लोग। बाणी च लिखिया इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। तो कंडीशन अप्लाई होंदी है, आप कुछ भी समान लैके आते हैं, कोई भी फ्रिज लैके आते हैं, स्पीकर लैके आते हैं, कुछ भी लैके आते हैं, तो वो सानू दिंदे गारंटी वारंटी दिंदे हैं, 5 साल की गारंटी है। कंडीशन अप्लाई, नीचे छोटा जा स्टार पा देंगे ना, स्टार पा के बरीक जे अखरां च लिख देने भी इत्थे तो नज़र ही ना जाए। जो वारंटी गारंटी है वो तो एडा बड़ा लिख देंगे हैं, गारंटी वारंटी एड्डी बड़ी लिख देंगे ने, और जी कंडीशन है वो छोटी लिख देंगे, एडनी का बंदा दिखता ही नहीं, चश्मा जे नाल आवे तो दिखता ही नहीं भी कंडीशन भी है। परमेश्वर की बाणी कंडीशन लगाती है, जे तुसी परमेश्वर दे अधीन हो, शैतान का सामना करोगे हैं, तो लिखे ना, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तो भाग निकलेगा। देखो 3 चीज़ां ने, परमेश्वर के अधीन हो जाओ नंबर 1, नंबर 2 शैतान का सामना करो, फिर नंबर 3 उस तुहाडे तो भजूगा, वो तुहाडे तो दौड़ जाऊगा। आगे लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मैं तो यीशु नूं तां मन्नू मेरा आ काम होवे पहला, है ना। शर्तां अपनियां शर्तां रख दिंदे ने, इंसान अपनी शर्त रख दिंदा। परमेश्वर की शर्त मनण की बजाय इंसान अपनी शर्त रख दिंदा। लेकिन वचन सानू कहंदा भी पहला तुसीं आओ परमेश्वर दे कोल,
फिर वो तुहाडे कोल आएगा, है कि नहीं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियो, पापी कौन ने? जो अपनी शर्तां रखते हैं, ओ जो अपनी शर्तां रखते हैं कि पहला मेरा ये काम हो जाए, पहला मेरी ये प्रार्थना सुनी जाए, फिर मैं मन्नू यीशु प्रभु है, नहीं तो सारे ही नहीं, है ना। इदां लोगों की सोच है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे पापियो अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्ते डबल माइंडेड हो जाते हैं लोग, भी वो भी ठीक है तो वो भी ठीक है, धागा भी पवा लो तो प्रार्थना भी करा लो, है ना। ऐदा ही ना, ऐदा करते लोग, है ना। फलानी जगह भी उत्थे जाए हो तो आप प्रार्थना भी करा लेंगे, घरे दीवा भी ला जाने, तो ऐतवार को प्रार्थना च आ जाएंगे। डबल जीवन, दूसरे अगे जीवन कुछ होर है तो परमेश्वर के अगे कुछ होर है। इस तरह का जीवन बारे परमेश्वर कहता है, पापियो अपने हत्थां नूं शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगो अपने हृदय नूं, अपने दिल नूं पवित्र करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ते फिर शैतान का सामना करते हैं तो शैतान साढ़े तो दूर हो जाता, साढ़े जीवन चो दूर हो जाता। जो शैतान दूर हो गया, शैतान का काम की है? नाश करना, गड़बड़ी लैके आना, लड़ाइयाँ झगड़े पैदा करना, साढ़े घर परिवारों के विच कलेश लैके आना, गरीबी लैके आना, बेरोजगारी लैके आना। ये सारिया गल्लां जिस तो इंसान दुखी हुंदा, शैतान उस उन्हां गल्लां तो खुश हुंदा, ते उहदा सामना जो असीं करदे हां यीशु मसीह नूं लैके, ते वो साडे जीवन चों दूर हो जांदा। एक होर वचन असीं पढ़दे हां, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4था अध्याय और उसके 10 वचन तो असीं पढ़दे हां। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, पेज नंबर 5 के उत्ते है, पेज नंबर 5 और उसका 4था अध्याय मत्ती दा, और इसका 10वां अध्याय। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। प्रभु यीशु मसीह दे कोल शैतान क्यों आया? क्यों आया? प्रमाण लई। प्रभु यीशु मसीह होर अगे वधना चाहते सी, वर्त रख ले प्रभु यीशु मसीह ने 40 वर्त रख ले, और होर प्रभु यीशु मसीह आत्मा च वधना चाहते सी, पिता परमेश्वर नाल गल्लां कीतियां, सेवकाई शुरू करन लगे सी। असीं भी जदों परमेश्वर दे विच वधदे हां ते साडे जीवन च कुछ तरह दीयां गड़बड़ियां शुरू हो जांदियां ने, है ना। ते असीं उन्हां गड़बड़ियां नूं देख के डर जांदे हां ते वापस उत्थे ही चले जांदे हां जिੱਥੋਂ शुरू होई सी, अगे वधन दी बजाय। बल्कि यीशु मसीह नूं नाल लैके शैतान दा सामना करो तो तुहाडे तो दौड़ जाएगा। जदों प्रभु यीशु मसीह ने वर्त रखे, प्रभु यीशु मसीह नूं भुख लगी, प्यास लगी, शैतान इन्हां गल्लां दा फायदा उठांदा। तुहाडे हरेक इंसान दे विच कमजोरियां ने, मेरे च भी ने, तुहाडे च भी ने। कोई नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हाँ, 100% मैं सही हाँ। हरेक इंसान दे विच कोई ना कोई कमजोरियां ने। शैतान उन्हां कमजोरियां उत्ते ध्यान लांदा, जिहड़ी रग दुखदी हुंदी उहदे उत्ते ही हत्थ ला लैंदा, है ना। उस समय प्रभु यीशु मसीह की जरूरत की सी? रोटी, भुख लगी सी। शैतान कहता इन्हां पत्थरां नूं कह दे रोटियां बन जाण, 40 दिन हो गए रोटियां खाधियां नहीं, खा लै जे तू परमेश्वर का पुत्र है। इन्हां गल्लां 'च शैतान दीयां गल्लां दे विच प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। दूसरी, तू उपरों छाल मार दे, प्रभु यीशु मसीह ने गल मन्नी नहीं। तीसरी, तू मेरे अगे झुक के मैनू सिजदा कर, मेरी उपासना कर, तो मैं सारा कुछ तेन दे दूँगा। नहीं मन्नी गल। की कहा प्रभु यीशु मसीह ने? ये भी लिखिया शैतान ने वचन दे विचों गल की कि सब पुराने समय ये कहता है भी जो तू उपरों छाल मार देवें तो स्वर्गदूत तेन चुक लैणगे, तेरे सट्ट ही नहीं लगूगी। प्रभु कहते परमेश्वर की परीक्षा ना लै, दूर हो जा। जो 10 वचन पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया।
तब उसके पास से चला गया। कदों चला गया? जदों वचन दे विच रहा, जदों प्रभु यीशु मसीह वचन दे विच रहे तो शैतान जो है उस समय दौड़ गया। वचन दा जवाब वचन दे नाल दिता। बहुत सारिया साढ़े आस पास सानू इदां दे लोग मिल जाएंगे जिहड़े भरमाण वाले वचन सुनाते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग उन्होंने गल्लां च आ भी जाते हैं और उन्होंने मुताबिक चलना शुरू कर देंगे ने। इस तरह के बहुत सारे साढ़े आस पास ने, साढ़े घरां च भी आए होणगे या आने वाले समय च आ जाणगे। वो जे तुहानूं वचन का नहीं पता, वो तुहानूं वचन सुणाणगे तो तुसी वचन का जवाब वचन दे नाल जेकर नहीं दिता, तुसी उन्हां दीयां गल्लां दे विच फस जाओगे और तुहानूं वो अपनी ले जाणगे पटके। तुहानूं उही सही लगन लग जूगा। जे तुहानूं अपनी जानकारी नहीं है ना वचन दी, फिर तुहानूं उन्हां दे वचन सही लगने शुरू हो जाणगे। जे शैतान की गल प्रभु यीशु मसीह मान लैंदा कि हाँ बई वचन दे विच तां लिखिया होया कि जे मैं छाल मारती स्वर्गदूत मैंने चुक लैणगे, मैं तां परमेश्वर दा पुत्तर हाँ, है ना। कई बार असीं भी चौड़े हो जाते हैं, असीं तां यीशु नूं मनदे हां, लै आह काम तां कुछ भी है नहीं गा, लै आपां कर दिंदे हां, ते फिर पुट्ठे पंगे कई बार पै जांदे ने, है ना। परमेश्वर दे वचन दे अधीन रह के असीं सब कुछ करिए। परमेश्वर दा वचन दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है। जे इधरों कटदा तो इधरों भी कटदा, दोनों पासे ही कटदा। जे दूसरे नूं कटदा तो अपने आप नूं भी कटदा। इस गल दा आपां ध्यान रखिए। इत्थे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर दे वचन दे राही गल कीती। तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। जदों यीशु मसीह नूं शैतान ने कहा तू मैनूं मत्था टेक, ते की किया? तू अपने परमेश्वर नूं ही प्रणाम कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। कदों? जिथे शैतान दा वास है उत्थे स्वर्गदूत नहीं आते। स्वर्गदूत कित्थे आते हैं? जो ये साड़ी अपनी लड़ाई है, यीशु के नाँ से लड़ांगे, है ना। यीशु के नाँ से जो लड़ते हैं शैतान दौड़ जाता, फिर साढ़े घरों के परिवारों स्वर्गदूत आ जाते हैं, फिर सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता। हालेलुया। एक वचन आप होर पढ़ते हैं, इफसियां 6 अध्याय और उसका 10 वचन तो। इफसियां 6 अध्याय, इफसियां 6 अध्याय और उसका 10 वचन तो। इफसियां 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन, 10वें वचन तो पढ़ते हैं। मिल गया जी। पेज नंबर 269, पेज नंबर 269। इसलिए प्रभु में उसकी सारी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो किमें? शरीर दे विच नहीं, जिम करके नहीं बनना, प्रार्थना करके। शैतान की है? आत्मिक, उसनूं असीं अपनी अखां दे नाल नहीं देख सकते, अनसीन। दुष्ट आत्मा की है? वो भी असीं अपनी अखां दे नाल देख नहीं सकते। और इन्हां दे नाल लड़न दे लई सानूं अंदरों मजबूत होना पएगा। इंसान भावें जिन्ना मर्जी तगड़ा होवे, बलवान होवे, लेकिन अंदरों जेकर मजबूत है तां ही असीं शैतान दियां युक्तियां का सामना कर सकते हैं। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर दे विच बलवंत बनिए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे सारे, थोड़े नहीं। जिन्ने भी हथियार ने सारे आप बन लीए भी चलो जी आ हथियार नाल काम चल जूगा, वो नहीं। सारे हथियार बन लिए की पता कदों किहड़ा हथियार की लोड़ पै जाए। सारे हथियार किहदे कोल ने? यीशु मसीह के अधीन हो जाओ तो सारे हथियार अपने आप ही पहन लेंदे ने। एक बार एक क्लिप देखी तो वो 2 बंदे सीगे, एक हथियार सारे चक के पान लग गया अपने, कोई किते पावे, कोई पिस्तौल भी चक लिया, चाकू भी चक लिया, डंडा भी चक लिया। एक ने की किया, वो हथियारों के नाल लैस जिहड़ी जैकेट सी वो पाली कली। किहड़ा जल्दी तैयार हो गया? हाँ, जैकेट पा लो बस। हथियारों की जैकेट, वो जैकेट के हथियार फिट ने। यीशु मसीह पहन लो। यीशु मसीह किवें पहन लेने असीं?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਵਚਨ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ तो हथियार कोई ना कोई और ले जाता, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश दे विच असीं धरती ते रहने, लड़ना किहदे नाल है? जो आकाश दे विच रहिंदे उन्हां नाल लड़ना। रहिंदे धरती ते हवाई जहाज है नहीं साडे कोले, कोई ड्रोन है नहीं, कोई इदां दा हथियार है नहीं, वो सानू नज़र भी नहीं आते उपर आसमान ते, फिर लड़ांगे किद्दां? गल सोचण वाली है कि नहीं? और फिर दूसरी गल की लिखिया, साडी लड़ाई ना मांस दे नाल है ना लहू दे नाल। मांस ते लहू की है? शरीर है। साडा पड़ोसी कौन है? मांस ते लहू। साडा भाई भैन कौन है? मांस ते लहू। साडा रिश्तेदार? मांस ते लहू। साडा दुश्मन? मांस ते लहू। उन्हां नाल नहीं असीं लड़ना, विरोधियों नाल नहीं लड़ना। विरोधी कौन ने? मांस ते लहू। साडी लड़ाई मांस ते लहू दे नाल नहीं है, परंतु किहनां दे नाल है? प्रधानां दे नाल है। एक नहीं है प्रधानों से, कई ने प्रधान है, प्रधानों से, अधिकारियों से। प्रधान ने, फिर उन्हां दे नीचे अधिकारी काम करते हैं वो ने, और संसार के अंधकार के हाकिमों से है। अंधकार दे हाकिम ये कौन ने? शैतान, उन्हां दियां दुष्ट आत्मावां जो आकाश दे विच रहिंदियां ने। कित्थे रहिंदियां? आकाश दे विच रहिंदियां ने। आत्मिक सेनाएं, आत्मिक जिन्हों असीं अपनी अखां दे नाल देख नहीं सकते। जदों अलीशा नूं घेर लिया चारे पासे, पढ़िया ना तुसीं वचन पुराने नियम च लिखिया, अलीशा ने जदों घेर लिया चारे पासे दुश्मन की सेना ने, ते अलीशा डर गया, गेहजी भी डर गया, उसका जिहड़ा दास सी वो डर गया। अलीशा नूं पर साफ नज़र आ रहा सीगा कि ये जिहड़े मेरे आसे पासे मैनूं घेरा पाया, उन्हां दे पिछे भी कोई है अग्निमय रथ। और जदों अलीशा ने प्रार्थना की तो वह गेहजी दियाँ अखां भी खुल गईयां, तो उसने भी अपने चारे पासे अग्निमय रथां नूं देखिया, जिन्होंने असी अखां दे नाल देख नहीं सकते, उन्होंने आत्मिक अखां दे नाल असी देख सकते हैं। उन्होंने आत्मिक सेनावां दे नाल असी आत्मिक युद्ध तां ही कर सकते हैं जदों असी परमेश्वर दे सारे हथियार बन्ने होणगे। ये हथियार भी नज़र नहीं आते, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक बार फिर तो परमेश्वर का वचन सानू कह रहा, पहले भी क्या सी, फिर कह रहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरा दिन कदों आऊगा दस के थोड़ी आंदा, बुरा दिन का कुछ नहीं पता कदों आ जाए। आप हुण बाहर निकलीए तो बुरा दिन आ जाए, कुछ नहीं पता। इस करके परमेश्वर के सारे हथियार बन लो कि बुरे दिन विच सामना कर सको। हथियार कदों बनने हैं? जदों दिन चंगे होण। जदों दिन चंगे होण उदों हथियार बनने ने। जो दिन माड़े आ गए, फिर माड़े दिनों का सामना करांगे, हथियार तिखे करांगे, है ना। उधरों दुश्मन आ गया तो असी कहिए लाई तलवार, कित्थे है? वो तलवार कदे कड्डी नहीं, पेटी च पई है ना। उन्होंने जंग लग गई, वो म्यान दे विचों निकलती नहीं है। कदों? जदों साडे अच्छे दिन ने, उदों असी हथियार बन लईए परमेश्वर दे, ताकि बुरे दिन विच सामना कर सकीए। हुण अच्छे दिन ने, ये हथियार किवें बन्ने जाणगे? प्रार्थना करके। ज़्यादा तो ज़्यादा असी वचन पढ़ीए, ज़्यादा तो ज़्यादा प्रार्थना करिए, ज़्यादा तो ज़्यादा असी परमेश्वर के लोगों के नाल रहीए, संगत विच रहीए। पूरा हफ्ता असी कामकार करते हैं। अज भी देखो बहुत सारे भाई भैन गायब ने, है ना। इतवार का दिन नहीं है प्रभु के कोल आण दे लई, और प्रभु तो चाहते हैं कि सानू आ भी दे दे, वो भी दे दे, साडा आ काम भी कर दे, वो भी कर दे। एक दिन का समा है नहीं, एक दिन की 3 घंटे बस। हिसाब लाओ, 24 7 नाल गुणा करो, कितना बनता है? 2 घंटे 40 मिनट 45 मिनट नहीं 7 दिनों 24 नाल गुणा करो, किन्ने बनते हैं?
ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਦੱਸੋ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 192 ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ 24 ਗੁਣਾ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸੋਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ 168 ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸੋਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 168 ਹੋ ਗਏ 168 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 165 ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 168 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ बोलो बोलो हाँ जैसे कि हाँ हाँ कपड़े हाँ अच्छा खाना हाँ हाँ वो भैन राजू की मंगती है शांति मंगते हैं दया मंगते हैं परमेश्वर दी होर की मंगते हैं बोलो बोलो दिन दुगनी रात सारे दुगनी अपन तरक्की होवे हाँ घर परिवार खुशी रहे बच्चे जाते बेटा पेपर देने गया है पास हो जाए हाँ बच्चों की फीस देनी है इंतजाम हो जाए हाँ तो कनाडा जाने वाला वीज़ा छेती लग जाए हाँ और बच्चे आंदे नहीं बच्चे जहाज भी चढ़ गए पता नहीं केड़ा जहाज चढ़े ने लिखिया कदों इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में सामना कर सको जदों अच्छा समय है साढ़े कोल समा है कि कोई दुख नहीं कोई कलेश नहीं कोई बीमारी नहीं उदों असी ऐशा करते हैं मौजा करते हैं साढ़े कोल समा है नहीं परमेश्वर कहता फिर पै जा मंजे ते फिर मंजे ते पै जाते हैं फिर समा ही समा आप मंजे ते पै रिश्तेदार आते हैं इधरों उधरों हाँ भाई ठीक है तो दूसरे मुसीबत पा दे आप तो आराम कर रहे हैं वो कट्ठा ही आराम कर लेंदा फिर है ना कट्ठा ही इस करके थोड़ा थोड़ा आराम कर लो तो ठीक है नहीं तो कट्ठा आराम करना पै जाऊगा फिर तो इसलिए की करना है आपां जिहड़ा काम परमेश्वर दा है परमेश्वर दा समा जिहड़ा वो परमेश्वर नूं दे दो जिहड़ा संसार दा है वो संसार नूं दे दो इस तरह लिखा ना बाणी च इस तरह लिखा जो कैसर दा कैसर नूं दे दो जो परमेश्वर दा है परमेश्वर नूं दे दो असीं दो चीज़ां खर्च करते हैं अपने जीवन दे विच एक समा खर्च करते हैं एक पैसा खर्च करते हैं इस तो इलावा होर की खर्च करते हैं मैंने तो दो ही लगता दो ही चीज़ां ने एक समा तो एक पैसा दो चीज़ां असीं खर्च करते हैं जिहड़ा संसार दा है उन्होंने संसार नूं दे दो काम कार भी करने हैं नौकरी भी करनी है भाई ये भी जरूरी है परमेश्वर ने 6 दिन देते ठीक है करो काम एक दिन सारा दिन चाहिए सवेर 6 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक तैयार है सारे अपना संगति करिए एक दिन बैठ के अपना हर एतवार आप इस तरह करेंगे सवेरे 6 बजे तो लैके शाम के 6 बजे तक आएंगे ना अगले एतवार सारे चाहिए तो यही है ना एक दिन का मतलब हुण 3 घंटे का दिन थोड़ी होंगे 24 घंटे का दिन होंगे ना 24 घंटे तो जब 12 घंटे चलो दे दो 12 घंटे पर सो जाएंगे 6 बजे तो लैके 6 बजे तक 12 घंटे हो गए तो बाणी च की लिखा तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको स्थिर अपने पैरों पर खड़े रह सको नहीं तो दुश्मन ने आना तो ढालना तुम गिर जाना है ना स्थिर रहना अपने पैरों पर खड़े रहना तो ही खड़े रह सकोगे जो तुम चंगे समय दे विच वो परमेश्वर के सारे हथियार बने होणगे एक असी हर रोज़ प्रार्थना का समा रखा होया एक योद्धा है प्रार्थना में एक योद्धा प्रार्थनात्मक जीवन तो वो असी प्रार्थना करते हैं राती 11 बजे शुरू हो जाते आप 11 बजे कोई 11 बजे बैठ जाता 11:05 से बह जाता कोई 11:15 बजे बैठ जाता है 1 घंटा प्रार्थना कोई 12 बजे समाप्त कर देंगे कोई 12:15 कर देंगे कोई 12:30 कर देंगे जिसकी जो इच्छा ये समा केड़ा चल रहा
ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾर्थना ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰੀਏ, परमेश्वर ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਲਈਏ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ, ਕਮਰ ਕੱਸਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। धार्मिकता की झिलम पहन कर, झिलम की ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, झिलम, ਝਿਲਮ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਮੂਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। धार्मिकता की झिलम पहन कर, धार्मिकता ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ? ਜੋ ਖੁਦ ਧਰਮੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ बनाता है। धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इस हथियार का भी असी इस्तेमाल करना, ये भी हथियार बन लेना है ना। सुसमाचार सुनाना दूसरे नूं, जो असी दूसरे नूं सुसमाचार सुनाते हैं, यीशु मसीह बारे दसते हैं, तो असी शैतान दे नाल लड़ते हैं हथियारों के नाल। शैतान होर कमज़ोर हो जाता साडे जीवन दे विचों भी ये तो आप तो बच गया भाई, आप तो भैन बच गई, ये दूसरे नूं भी बचाउण तुर पे है भी। इन्ने दिलेर हो गए, हुण तां मैनूं जाना ही पैना इन्हां दे जीवन दे विच। सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रह सको, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इस तो अलावा एक ढाल भी ले लो, एक ढाल भी ले लो कि सामने जेकर तीर कोई आवे दुष्ट का जलदा होया तीर, वो सधारण तीर नहीं हैगा, जलदा होया, उसनूं अग लगी हुई है, वो जिथे भी जाता, एक पेट्रोल पंप जिस तरह होंगे ना, अग ला के सुट दो पेट्रोल पंप, तो जिथे भी गिरूगा उत्थे सारे अग ला दूगा, इस तरह का तीर। विश्वास की ढाल, विश्वास भी होना चाहिए सानू परमेश्वर के उत्ते। कई बार साडे हौली हौली जिस तरह असी मसीही जीवन दे पुराने होंदे चले जाते हैं, पुराने होंदे चले जाते हैं, तो साडा विश्वास जो है घटता चला जाता है ना। तुसीं ये अजमाया हो गया अपने जीवन दे विच कि जदों तुसीं प्रभु दे कोल आए सीगे, उदों तुहाडा विश्वास किदां दा सी और अज दे समय तुहाडा विश्वास किदां दा है? वधिया है कि घटिया? हर कोई दसो। घटिया ना? हाँ, पहला एक तांग हुंदी सी सानू, संगत कित्थे है, तैयार रहिंदे सी आपां जाण नूं, दूर पता नहीं कित्थे कित्थे चले जांदे सीगे, घरे भावें लड़ाई हो जाए, है कि नहीं? इदां ही हुंदा सीगा, घरे फिर लड़ाई हो जांदी सी, कोई गल नहीं। एक वो विश्वास सीगा, विश्वास हमेशा साडा बनिया रहे, कायम रहे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उधार का टोप, सारे हथियार पहने, कित्थे जा रहे हो? लड़ाई के मैदान जा रहे हो। लड़ाई के मैदान जाण वास्ते जैकेट पा ली तो लड़न नूं कुछ है नहीं कोल, फिर भी कोई फायदा नहीं है। जे लड़न नूं हथियार तुसीं लै गए, जैकेट नहीं पाई, टोप नहीं पाया, जुत्ते नहीं पाए, फिर भी कोई फायदा नहीं है। जे एक चीज़ भी घट गई तो दुश्मन ने तुहानूं हरा देना, दुश्मन ने तुहानूं हरा देना। आपां उदाहरण लैने आ, गोलीयत। गोलीयत दे की कुछ पाया होया सीगा, सारे हथियार पाए हुए सी गोलीयत दे, सिर तो लैके पैरों तक वो हथियार पाए हुए सी उहदे। और शाऊल ने दाऊद नूं अपने कपड़े देते, पढ़िया ना तुसीं, है ना, अपने कपड़े देते भी इदां कर भी वो जिहड़ा बंदा सामने गोलीयत है, उन्हें तो बड़े हथियार पाए हुए ने, झिलम भी पाई हुई है, सब कुछ पाया होया, तो तू मेरे कपड़े पा लै ताकि उहदे नाल लड़ सके। तो दाऊद तो चलिया भी नहीं गया है वो कपड़े पा के, वो कहता मैं लड़ूंगा कि, मेरे तो चलिया भी नहीं होंदा, इन्ने भारी कपड़े हो गए। तो दूसरे पासे गोलीयत जिहड़ा जिसनूं अपने आप ते ज़्यादा घमंड सीगा, अपने शरीर के उत्ते ज़्यादा घमंड सीगा, वो कहता मैं परमेश्वर दे नां ते तेरे कोल आंदा हाँ, ते सारे हथियार पहनण दे बावजूद भी मत्थे उत्ते उसने जगह खाली छड्डती। जे वो मत्थे उत्ते भी जगह टकी हुंदी तो गोलीयत मरना सी, नहीं मरना सी। परमेश्वर ने फिर भी कोई ना कोई हल कढ़ देना सी, गोलीयत ने तो मरना ही सी, लेकिन सौखा हो गया काम। परमेश्वर दे जो सारे हथियार पहन लैने आ, फिर शैतान का सामना असीं करते हैं, फिर शैतान साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन गोलीयत शैतान का ही बंदा सीगा। तो इत्थे की लिखिया,
इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा दी तलवार देखो, आ वचन एक ही है, परमेश्वर दा वचन, आत्मा दी तलवार, जिन्हां दे नाल असी लड़ना है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। ये हथियार किमें बने जाएंगे, किमें ले जाएंगे हथियार? है हर समय आत्मा दे विच प्रार्थना और विनती, हर समय, है ना, भावें जिथे मर्जी होइए। जिवें साह लैने आपां, साह जिवें साह लैने इस तरह नाम लईए प्रभु का, हर साह दे नाल तेरा शुक्र करा, है ना। आप गीत भी करने ना, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो। जागते रहना, होशियार रहना है, सावधान रहना है कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। कौन ने पवित्र लोग? यीशु मसीह के खरीदे लोग, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने खरीदया, वो ने पवित्र लोग। तुसी भी ते मैं भी, यानी कि एक दूसरे लिए आपां प्रार्थना करिए। जो असीं रात नूं बैठते हैं, तुहाडा एक समा तो होएगा ना प्रार्थना का, रात नूं कोई भी समा होऊगा प्रार्थना का, मैनूं तो पता नहीं। तो उस समय तुसीं प्रभु के लोग जिहड़े तुहाडे, जिन्हां नूं तुसीं जाणदे हो, जिन्हां नूं परमेश्वर तुहानूं दिखांदा, उन्हां दे लई प्रार्थना करिए। ये है हथियार बन्नण का एक तरीका। साडे लड़ाई के हथियार ये संसारिक नहीं, लाठी नहीं हैगी, कोई तीर तलवार, कोई बंदूक नहीं, बल्कि आत्मिक हथियार ने, जिन्हां दी लिस्ट हुणी असी इस जगह ते देखी। ये हथियार असी बन्नीए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, शैतान का सामना करिए। शैतान का सामना हथियार पा के जो असी करते हैं, तो शैतान साडे तो दूर हो जाता। शैतान आऊगा, प्रभु यीशु मसीह के कोल भी आया। ये नहीं भी तुहाडे जीवन च शैतान नहीं आऊगा, आऊगा, पर वो बिगाड़ कुछ नहीं सकता, क्योंकि असी यीशु मसीह दे विच रंगे हुए हाँ, उसदे लहू खरीदे हुए लोग हाँ, असी पवित्र लोग हाँ, असी धर्मी लोग हाँ। साडा कुछ शैतान बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि साडे लड़ाई दे हथियार किहड़े ने? आत्मिक ने। साडी लड़ाई किहदे नाल है? मांस ते लहू नाल नहीं है, बल्कि आत्मिक लोकां दे नाल, आत्मिक सेना दे नाल, अधिकारियों दे नाल, जिहड़े कित्थे रहिंदे ने? आसमान दे विच रहिंदे ने, आसमान च रहिंदे ने। वो सीधे आसमान तो तुहाडे घरां विच गिरदे ने। जिवें एक चिड़ी हुंदी है ना, वो मच्छी नूं देखदी है, वो सीधी छाल मारदी है ना, अपने फंगां नूं बंद कर लैंदी है, ते सीधी मच्छी दे चुंझ मारदी है, उत्थों ही लै जांदी है मच्छी, चुंझ दे फसी, है ना। इस तरह दुष्ट आत्मा साडे घर च आंदी है, सीधी, पता ही नहीं लगता, है ना। जे हथियार बनने होणगे तो आसमानी ताकतां साडा कुछ कर नहीं सकदियां। प्रभु की बाणी च लिखिया, जे जिस जगह के उत्ते 2 या 3 मिल के प्रार्थना करेंगे, उस जगह पर मैं हाजिर होऊंगा। और जिथे सब मिल के एक मन होके तुसी इस किसी गल की प्रार्थना करोगे, इस धरती उत्ते बन दोगे, तो आसमान के उत्ते भी बनी जाएगी। और जिसनों खोल दोगे धरती उत्ते, वो आसमान के विच भी खुल जाऊगी। सानू परमेश्वर ने बन्नण दा ते खोलण दा भी हथियार दिता, लेकिन शर्त की है? उस दे अधीन होके, कंडीशन। हालेलुया। आओ जी असीं प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तेरी महिमा जय जयकार वडियाई करते हैं, तेरे नाम नूं उच्चा करते हैं। अज दे दिन समय के लिए शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तू जिंदा है, सच्चा है, महान, सर्वशक्तिमान है, प्रभुआं दा प्रभु है। जिंदे परमेश्वर जी, तुहाडी बाणी दे विच्चों असीं सुणिया, सिੱਖਿਆ मेरे परमेश्वर जी, कि तुहाडे हथियार असीं बन लईए। जिंदे परमेश्वर जी, चंगे समय दे विच असीं तुहाडे हथियारां नूं बन्नीए, प्रार्थना करिए, संगत विच रहिए। प्रभु जी, तुहाडे खून खरीदे होए लोकां दे नाल साडा मेल जोल होवे। सुसमाचार की तैयारी के जुत्ते असीं पहन के रखीए। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन प्रभु जी हमेशा असीं पकड़ के रखीए। सानू मजबूत बनाना प्रभु जी, प्रार्थना वाला जीवन देना, आत्मिक जीवन देना, संगत वाला जीवन देना, तुहाडे वचनां ते चलण वाला जीवन देना। प्रभु जी, अगर किसी भी तरीके दे नाल असीं गिरे हाँ प्रभु जी, तो याद करते हैं, क्योंकि तुहाडी बाणी च लिखिआ, याद कर तो कित्थों गिरिया। प्रभु जी, असीं याद करते हैं प्रभु जी उस समय नूं। प्रभु जी, सानू फिर तो प्रभु जी उस ऊंचाइयां ते लेके जाना प्रभु जी।
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ।